So I request our students to welcome Dr. J.P. Malik and Mr. Fernando is here from Thailand. He is an executive coach working to plan international empowering marginalized children and youth in Asia region. It's very easy to work for yourself, but it is very difficult to work for others. So we must welcome him. He is all the way from Thailand to witness your celebrations. And now I take this opportunity on behalf of all of you to welcome the guest. Once again, put your hands together to welcome our guests. Thank you, ma'am. Music is the soul of life. Here we present the school orchestra group comprising of 60 students from classes 4 to 11. Let's hear to this melodious sound of different instruments played beautifully by them. That was so rhythmic, so melodious. A big round of applause. They deserve it. Yes or no? Then I want to hear the applaud. Great, thank you. I request the principal of the school to present a welcome address to our esteemed guests and a brief annual report of the school. Please, ma'am. Good morning, everyone. Although we have formally already welcomed our guest with the flowers and a lot has been said about our chief guest, but I request all of you to take one lesson from him today. He started his life very humbly, but after struggling for the livelihood and creating a niche for himself, he decided that now he shall work for the community. Janhit Paramo Dharma. दूसरों की सेवा करना, जनता के हित के लिए काम करना ही परम धर्म है। इन्होंने इसको श्री शिवचरण गोयल जी ने इसको अपने जीवन का मंत्र बनाया और उसी का नतीजा है
कि इन्होंने अपने एरिया में बहुत कार्य किया और आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़े हुए और इस समय मोती नगर क्षेत्र से एमएलए हैं। मैं जब इनको फर्स्ट टाइम इनवाइट करने गई थी इनके ऑफिस में, तो मैं बहुत देर तक वहाँ बैठकर ऑब्जर्व करती रही कि कितने तरह के लोग कितनी तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के अपनी आ रहे थे और वो सबकी प्रॉब्लम्स को पूरी तसल्ली के साथ सुन रहे थे। शायद इतनी ज़्यादा उनको कमिटमेंट थी और इतना उसको सुनने में वो तल्लीन थे कि वो बैठने की ज़रूरत भी नहीं समझते थे। उन्होंने सबकी प्रॉब्लम्स, चाहे वो उनके एरियाज़ में टॉयलेट बनाने से लेकर के रोड डिज़ाइन तक करने तक की जो भी समस्याएं थी सबको सुना, सबका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इमीडिएटली जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जिससे कोऑर्डिनेट करना था, मतलब मैं ये देख रही थी कि बिना एक भी मिनट बर्बाद किए उन्होंने उसी समय वहीं से कॉल करके कि क्या प्रोग्रेस है काम की, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब उनको थोड़े समय के बाद में मेरे से बात करने का समय मिला तो उन्होंने मुझे अपने पूरे एरिया का प्लान दिखाया कि हम ये काम कर रहे हैं। सो ही इज़ सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क, वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम हिम। और अपनी एक्सपीरियंस तो अभी वो शेयर करेंगे ही आपके साथ में, लेकिन हमें समाज के हर व्यक्ति से जब जो सीखने का मौका मिल रहा है वो ज़रूर मिलना चाहिए और वो हमें सीखना भी चाहिए। तभी हमारा जो आज का सेलिब्रेशन है, आज आप 68वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग 68th रिपब्लिक डे, सो दैट मीन्स we are celebrating the anniversary of 67th year has been completed and 68th Republic Day is going to be celebrated on 26th of January, and we are celebrating that eve today. And I believe that all of you will take good lessons from the people who are sitting on the stage, from your teachers, from the leaders who are working dedicatedly and who are trying to change India's image in the eyes of the world. Now you know that India is the country, India has become the country which is getting the most of the attention of all the world leaders, whether they are from America or from any other country of the world. So we must take this opportunity to come forward, to take to be self-dependent. Have you heard the Trump speech this year when the oath-taking ceremony of America's newly elected president was there? Every time I was watching the media, his speech was compared at every point with the speech of our Prime Minister. So that kind of attention now we are getting in the world. तो आप सबको इस मौके का फ़ायदा उठा करके ये समझना है कि कौन सी क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं और कैसे एक दिन इस पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएं। अभी बच्चे ने एक धुन प्ले करी थी, लक्ष्य को पाना है, तो वो लक्ष्य को पाने की प्रेरणा आज आपको लेनी भी है और उसको पाने के लिए आपको प्रतिज्ञा भी करनी है। Sir, I would like to share some of the achievements of the school this year. I will start with the class 10th and 12th results. This year, from our school in class 12th, 142 students appeared, and the highest marks were attained by Dipanshu Jindal. This was 98.5%. So he was having the 5th position in the CBSE. First 4 were the girls and the 5th was the boy, and he was from our school. Apart from this boy was all India topper of IIT JEE examination this year, and this was a record. पिछले 15 साल से IIT JEE का टॉपर 15 लाख विद्यार्थी हर साल बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, और वो साउथ इंडिया से होता था। तो 15 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा कि नॉर्थ इंडिया से किसी बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली, और वो भी दिल्ली से, क्योंकि लोग दिल्ली से उम्मीद कम रखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि एकेडमिकली
दूसरी स्टेट्स के बच्चे हमसे ज़्यादा साउंड है, दिल्ली के बच्चे मस्ती में ज़्यादा रहते हैं। तो लेकिन उस दिल्ली से और वो भी इस विद्यालय से ये बच्चा है, हमारे लिए ये गर्व की और गौरव की बात है। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स था वो 75.4% रहा है। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि एवरेज मार्क्स डिस्टिंक्शन अबव रहे हैं स्कूल के। दीपांशु जिंदल के बाद नेक्स्ट टॉपर अमन यादव है 96.5%, देन जिज्ञासु सोलंकी 94.5% एंड अनुज चौहान 94%. In commerce stream, Sheetal Jain got 95%, Tanvi Bansal got 92% and Rachit Bansal got 91.8%. Even in humanities, the first position was taken by Khushbu Gaur with 92.8%, Amin Aftab 90.5% and Muskan Pathak with 90%. She got third position. So there were actually 58 students out of 142 who got more than 80% marks. In class 10th, 137 students appeared and 13 students they got 10 CGPA grade. The children who got 10 CGPA grade, they are invited by Ministry of Science and Technology to attend their one camp which is known as the Inspire Camp. इंस्पायर कैंप में डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स उनको एड्रेस करते हैं और रिगरस ट्रेनिंग 1 वीक तक दी जाती है और बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ की लैब में काम करने का मौका मिलता है। तो इन बच्चों को, ये जो 13 बच्चे हमारे स्कूल से गए, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। और मैं लिस्ट कंपेयर कर रही थी कि दिल्ली के जितने स्कूल्स थे उनमें से शायद हमारे बच्चे 3rd नंबर पे थे जहाँ से इतने ज़्यादा बच्चे थे। अदरवाइज स्कूलों से 2-2, 4-4 बच्चे भी थे। तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा स्कूल आज की समय के साथ में कदम मिलाता हुआ चल रहा है और बच्चों को स्टार्टअप के लिए जिस तरह मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ही हम अपने बच्चों को अभी से इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कैसे सेल्फ सस्टेनेबल हों, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने। और उसके लिए स्कूल ने 2 प्रोग्राम चलाए। एक युवा कृति है। युवा कृति प्रोग्राम में जितना स्कूल में वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो कागज़ की फॉर्म में है या वेजिटेबल पील्स की फॉर्म में है, उनसे बच्चे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनसे फंड्स रेज करते हैं हमारे इंक्लूसिव सेटअप के लिए। हमारे पास स्पेशल नीड्स के भी 98 बच्चे हैं, तो जिनके लिए कुछ सुविधाएं जुटाने के लिए हम बच्चों से कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं लेते। स्कूल के बच्चे ही आपस में कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के लिए वो फंड्स जनरेट करें और एक दूसरे के लिए काम करना सीखें। और दूसरा, अभी आपने एक प्रोजेक्ट देखा था स्मार्ट मेडिकल रूम का। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स को एक इंटरनेशनल फेस्टिवल मेकर्स फेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे हर साल 30,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बच्चे जो हमारे स्कूल से गए वो सबसे छोटे थे वहाँ पे, बिकॉज रेस्ट ऑल दे वर आइदर द कॉलेज ग्रेजुएट्स और द कॉलेज पास आउट्स। लेकिन ये स्कूल के बच्चे पहले थे और सबसे अनोखी बात ये हुई कि इन्होंने अपनी युवा कृति के प्रोडक्ट्स की अच्छी सेल भी करी और अच्छे ऑर्डर्स भी लिए वहाँ से। तो इनको स्मार्ट मेडिकल रूम के लिए भी, स्मार्ट मेडिकल रूम का कॉन्सेप्ट ये है कि हॉस्पिटल्स में जैसे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने से पहले सिस्टर्स के पास लंबी लाइन लगी होती है क्योंकि हाइट और वेट चेक किया जाता है। इवन स्कूल के मेडिकल रूम में भी ऐसा ही होता है। तो वो समय बर्बाद ना हो और सेंसर्स ऐसे डेवलप किए, इन्होंने ऐसी मशीन्स डेवलप करी है कि ऑटोमेटिकली हाइट और वेट रिकॉर्ड हो जाए। तो उसमें ना समय की बर्बादी होगी और ना ही ह्यूमन लेबर